ہم مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہماری ساری کائنات ان کی وجہ سے ہے۔ تو آپ اس قسم کا شرک وہاں کریں گے، آپ اس قسم کا کوئی ایسی چیز گستاخی کریں گے جس سے جموں کشمیر کے لوگ، خصوصی مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ مجروح ہو گئے ہیں، بہت تکلیف ہوئی ہے۔ اور اس پہ ترا یہ کہ جو لوگ جذبات میں آ کے جنہوں نے وہاں توڑ پھوڑ کی اس بورڈ کے ساتھ، ایک کوئی انہوں نے جو ایمبلم ہے اس کے ساتھ وہ اس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ جس ایمبلم کی اس وقت جو ایک ہمارے مذہب میں بت پرستی کا جو کے خلاف ہمارا مذہب ہے، تو وہ اس کے خلاف لوگ تھے کہ یہ کیوں لگا وہاں پر۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنا کہ بھئی ان کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے اندر بند کرنا چاہیے، ٹیررسٹ ہیں، میں تو کہتی ہوں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے سیکشن 295A کے انڈر، بیکاز دس از بلاسفیمی فار اس۔ جو بلاسفیمی کی سزا ہے جب آپ کہیں کسی ایسی کوئی حرکت کرتے ہو جس سے کسی بھی مذہب کے لوگوں کے جذبات زخمی ہو جائیں، مجروح ہو جائیں، تو وہاں پر یہ ایکٹ لگتا ہے اور اس میں کارروائی ہونی چاہیے۔ میں عمر عبداللہ صاحب سے بھی گزارش کروں گی کہ جو اوقاف ہے وہ اس میں رسپانسبل ہے، کیونکہ وہاں تو کوئی نان مسلم نہیں ہے، وہاں سارے مسلمان ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے آقا جو دو جہاں کے وہاں پر جو ان کی درگاہ ہے، وہاں پر جو ان سے منسلک درگاہ ہے، وہاں پر ہم شرک کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں کیا؟ پہلے تو جو وہاں میں نے دیکھا جس طرح سے اس کے اناگریشن کی، وہاں تو درود ہونا چاہیے تھا، درود السلام ہونا چاہیے تھا، نعت خوانی ہونی چاہیے تھے۔ یہ تو بی جے پی کا کوئی ذاتی فنکشن نہیں تھا، مطلب یہ تو کسی کی تاج پوشی کا فنکشن نہیں تھا، یہ تو وہاں ہمارے درگاہ حضرت بل کی شان میں فنکشن تھا۔ اور اس کو نہ میں نے کہیں درود سنا، نہ میں نے کوئی نعت خوانی سنی، اور یہ ایک تاج پوشی کا بن گیا۔ اور میں تو عمر صاحب سے گزارش کروں گی کہ اس میں ہیڈ شوڈ رول، بیکاز یہ کس طرح سے، یہ تو اوقاف کی ذمہ واری، انہوں نے کس طرح سے اس بورڈ پہ ایسی کوئی چیز رکھی جو ہمارے مذہب میں شرک مانا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا وہاں تو کوئی نان مسلم نہیں تھا، سارے مسلمان ہیں، چیئر پرسن سے لے کے نیچے تک سارے مسلمان ہیں۔ اور اس کے بعد تو رائے یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں اینٹی ٹیررسٹ لا، امیر شاہ صاحب کو، ہوم منسٹر کو آنا چاہیے اور ان کو یہاں ان لوگوں کو پکڑ کے جیل میں پبلک سیفٹی ایکٹ کے انڈر ڈالنا چاہیے۔ میں تو گزارش کروں گی کہ اس میں سیکشن 295A کے انڈر کارروائی ہونی چاہیے، اور جو ریسپانسبل ہے، خاص کر اوقاف بورڈ، ان کے جو اس وقت ہیڈ ہے، جو بی جے پی جماعت سے، آج تک تو ہمارے پاس بھی اوقاف بورڈ رہا، پر ہم نے اس کو کبھی پارٹی کا بورڈ نہیں بنایا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا نیشنل کانفرنس کے ٹائم میں مجھے معلوم نہیں، پر جب مفتی صاحب نے اس کو سنبھالا تو ہم نے ایکسپرٹس کو لایا، ہم نے ان لوگوں کو لایا جن کا ہمارے پارٹی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تو آج آپ نے بی جے پی کی، جن کی آئیڈیالوجی مسلمانوں کے خلاف ہے، جنہوں نے پہلے تو ہمارا جو عید میلاد النبی کے دن میں بھی، اس میں بھی کنفیوژن کیا، جو کہ چاند کو دیکھ کے ہمارا دن منایا جاتا ہے، تو اس کو بھی درکنار کر کے چھٹی اس دن کی جس دن تھا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح ہمارے مذہب میں مداخلت کر کے، اور آج وہ ہمارے جو حضرت بل درگاہ کے دروازے پہ پہنچے، تو یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ مگر ساتھ ساتھ میری تمام لوگوں سے گزارش ہے، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، کہ اس میں ہمیں توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ توڑ پھوڑ کریں گے تو آپ نے سنا کل کا بیان کہ بھئی امیر شاہ صاحب کو کہ آپ سب کو جیل میں ڈال دو۔ پہلے ہی کشمیریوں کو ٹیررسٹ مانا جاتا ہے، ان کو ٹیررسٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ پہلے ہی ہمارے ہزاروں کے تعداد میں ہمارے لوگ جیلوں میں بند ہیں، باہر کی جیلوں میں بند ہیں، یہاں بند ہیں، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ تو اب آپ دوبارہ موقع مت دیجئے ان کو کہ یہاں دوبارہ کریک ڈاؤن کر کے ہمارے لوگوں کو یہ دوبارہ ان کو جیل میں ڈالنے کا موقع ملے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں
मुझे मालूम है ये सब्र का वक्त नहीं है, ये तहम्मुल का वक्त नहीं है, क्योंकि मैंने कहा हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है दुनिया में हमारे आका के बगैर। तो जब उनके दरवाजे पे, जब उनके जो जगह उनसे दरगाह मुंसलिक है वहाँ इस किस्म की शिरक जैसी गुस्ताखी की जाएगी तो नेचुरली हमें गुस्सा आता है, हमारे जज्बात जो हैं उभर जाते हैं। मगर इसमें थोड़ा होश रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ बहाना ढूंढा जाता है कि किस तरह कश्मीरियों को किसी न किसी तरीके से जो है जेल में डाला जाए। महबूबा जी, चूँकि जो कल इंसिडेंट हुआ है, वक़्फ़ की जो सरबराह है वो एक फ़ीमेल है, क्योंकि आपसे बखूबी वाकिफ़ है हमारी कुछ रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस है एक फ़ीमेल के लिए। फ़ीमेल की अपनी कदर कीमत है, इज़्ज़त है, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शंस है किसी जगह जाने के लिए जहाँ मेल गैदरिंग हो। और इस तरह से एक लेडी इस सूरत हाल में गई है जिसका नतीजा कल सामने आया है। और अभी अभी जो रिपोर्टेडली हमने सुना है कि जो FIR के बारे में बात की गई है, कुछ लोगों के खिलाफ FIR हुआ भी है, क्योंकि ये शायद कल उस बात का नतीजा है जब उसने कहा था अगर FIR और एक्शन नहीं होगी मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। मैं कहती हूँ FIR तो होना चाहिए, अंडर सेक्शन 295A के तहत होना चाहिए, ब्लास्फेमी के लिए होना चाहिए और उन्हीं के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने ये बोर्ड लगाया, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, जिन्होंने वहाँ अपनी ताजपोशी करवाई, उनके खिलाफ होना चाहिए। उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए जो जज्बात में आके, जिन्होंने वहाँ पर उस वक्त गुस्से में आके कोई ऐसी, वो तो कोई भी कर सकता है। जब आप किसी के, हम तो जान देने के लिए तैयार हैं, मुसलमान तो अपना सर हथेली पे रख के अपनी जान देने के लिए तैयार है। आपने करबला का सुना नहीं है कि वहाँ कितनी कुर्बानियाँ दी? तो ये तो हमारे मजहब के साथ खिलवाड़ है। तभी तो मैं कहती हूँ उमर साहब को ये मसला उठाना चाहिए और फौरन से पेशतर इस बोर्ड को डिसबैंड करके, फिलहाल इसको सस्पेंड करके, जितने भी इसमें सरबराह से लेके नीचे तक उनको अलग कर दिया जाना चाहिए इस बोर्ड से। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसके बाद शायद एक अच्छी बात कही कि बजाय इसके कि एक सरबराह लेडी लोगों के सेंटिमेंट्स को जो मजरू हुए हैं माफ़ी मांगती, उसके अगेंस्ट ही हो गया है कि एक हार्ड एफर्ट्स लेकर सबको अंदर डालने की डिमांड की। मैं वही तो कहती हूँ कि जिसको जेल में डालना चाहिए तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो रही चाहिए। जिसने ब्लास्फेमी की, इट्स अ ब्लास्फेमिश, टोटल ब्लास्फेमी है ये, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो अवकाफ के जिन्होंने ये लगाया, जिन्होंने किया। और दूसरा मैं दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ, जो ये एक फैला रहे हैं कि इन्होंने जी मुल्क का जो एम्बलम है उसको तोड़ने की कोशिश की। मुल्क के एम्बलम को तोड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि मूरत को तोड़ने की कोशिश की, जो हमारे मजहब में जायज़ नहीं है, शिर्क समझा जाता है। उन्होंने कल ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जो पहाड़ों में है मिल्टन वो नहीं है, मिल्टन ये है जिन्होंने कल दरगाह में ये कंट्रोवर्सी पैदा की। मैं वही तो कह रही हूँ कि भाई वक्फ बोर्ड में ऊपर से लेके नीचे तक ऑल द हेड शुड रोल, क्योंकि अगर ये कंटिन्यू रहता है तो मुझे लगता है ये यहाँ के लोगों के साथ, जो आपने पहले ही एक गुस्ताखी की है, यहाँ के लोगों के जख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर है। ऐसा गुस्सा है इस वक्त लोगों में, ऐसा उबाल है लोगों में। मैम, आपको लगता है कि बिहार इलेक्शन होने वाले हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों को लेकर जो है, जो धार्मिक सेंटिमेंट से जुड़े हैं, कोशिश कर रही है उन पर राजनीति की जाए और ऐसे लोगों को बांटा जाए, जैसा कि बीजेपी का पहले से ही जो है रिलीजियस कार्ड रहा है? नहीं, कश्मीर तो, जम्मू कश्मीर तो उनकी जो उनकी बसात है उसका तो असली मोहरा जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर पे तो सारी उनकी पॉलिटिक्स चलती है। जम्मू कश्मीर के नाम पे तो लोगों से वोट मांगते हैं, हमने जी 370, और इन्होंने किया क्या? क्या बेरोजगारी दूर की? क्या महंगाई दूर की? क्या किया इन्होंने? जो तरक्की ऐसी की, ऐसी सड़कें, इतने टनल ऐसे बनाए, ऐसे जंगल काटे, ऐसे दरियाओं को माइनिंग करके खाली कर दिया, जंगलात को ख़त्म कर दिया, टनल बना बना के पहाड़ खोद दिए कि आज आपने देखा पूरा मुल्क, उत्तराखंड से लेके, पंजाब से लेके, हिमाचल से लेके कश्मीर, जम्मू, सारा दरिया के नज़र हो गया है। तो आप उनके पास है ही क्या और बोलने के लिए, दिखाने के लिए, सिर्फ ये इस किस्म के मजहबी इश्यूज़ को उठाना। मैडम, दरगाह हजरत बल एक ऐसी जगह है जिसको कश्मीर के लोग मदीनतुल सानी के नाम से जानते हैं, और एक ऐसी जगह जहाँ हमारी पंडित बरादरी के लोग, मखदूम साहब जाते हैं, चार शरीफ जाते हैं, लेकिन इस लेवल पर जाना आपको क्या लगता है, हम कहाँ तक अब सेफ है, बचा ही क्या है? मैंने कहा कि वो तो अब देखेंगे। आज तो ये जो यहाँ की सरकार है, जिसको लोगों ने इतनी बड़ी अक्सरियत से चुना, 50 MLA किस लिए रखे हैं? वो 3 मेंबर पार्लियामेंट किस लिए हैं ये लोग? अगर ये बात भी नहीं कर सकते हैं, सर उठा के मुकाबला भी नहीं कर सकते, अगर ये हमारी मजहबी जो हमारी जगह है, अगर ये उनकी भी हिफाजत नहीं कर सकते हैं,
लोगों की हिफाजत तो दूर भी की बात है, अगर ये हमारे जज्बात की हिफाजत भी नहीं कर सकते तो फिर मुझे समझ नहीं आता है फिर ये इतनी बड़ी अक्सरियत ये जो है इसका क्या फ़ायदा होगा। मतलब ये तो इतनी गुस्ताखी कैसे की इन्होंने जुर्रत कैसे की। एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, इतनी बड़ी हमारी यकीन की जगह है ये, तो हमारे सरकार दो आलम उनकी जगह है ये, उनसे वाबस्ता ये जगह है, तो इतनी बड़ी गुस्ताखी हुई और हम तमाशा देखते रह जाएं, ऐसा तो नहीं होगा। पर मैं फिर लोगों से कहूँगी कि इसमें उस तरीके से सब्र से काम लेना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए कि इनको बहाना मिले और हमारे लोगों को जेल में डाल दें। लेकिन उम्मीद करेंगे पीडीपी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद नहीं रहेगी, इस मामले में लोगों के साथ खड़ा शाना बशाना। बिल्कुल, हम लोगों के साथ हमारे जज्बात भी उतने ही मजरूह हुए हैं जितने एक आम मुसलमान के हुए हैं। और मैं सईद ख़ानदान से हूँ, मेरा बहुत रिश्ता भी है, जुड़ा हुआ है रिश्ता सईद होने की वजह से, और इसलिए शायद मैं इस गुस्ताखी को मैं समझती हूँ कि ये ब्लास्फेमी है, शिर्क है, और इसमें कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जानी, जैसे सज़ा है ब्लास्फेमी की 3 साल जेल। मैं देखती हूँ आप कितने लोगों को ये जेल में डाल देंगे, हमारे कश्मीरी लोगों को जिन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया गुस्से में, उनको में जेल में डालते हैं, या औकाफ के उन लोगों को जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। थैंक यू सो मच। लगता है कि अब ये मुद्दा जो है राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा और ऐसे जो है वो तो आपको बीजेपी से सवाल पूछना चाहिए, वो मैं उसका जवाब कैसे दे सकता हूँ। थैंक यू मैम। ओके।